صدیوں پرانی بات ہے، کسی ملک میں شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلیم نامی شخص اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ سادگی بھری زندگی گزار رہا تھا۔ سلیم ایک سادہ دیہاتی شخص تھا جس کی زندگی کھیتوں اور گھر کے بیچ گردش کرتی رہی۔ زمینداری اس کا واحد ذریعہ معاش تھا اور اسی محنت کے ساتھ وہ اپنی بیوی ہاشرہ اور 4 بچوں کی کفالت کرتا رہا۔ اگر آپ کا دل نرم ہے تو یہ کہانی آپ کو ضرور رلا دے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک خاموش پیغام ہے جو بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ فرق زندگی کا سب سے دردناک سبق سکھا دیتا ہے، مگر افسوس کرنے سے وقت پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ لہٰذا اس کہانی میں خاندان کے ہر فرد کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ ایسی غلطیوں کو درست کریں جو آنے والے وقت میں آپ کی زندگی کو اجیرن بنا سکتی ہیں۔ ہمارے قصے سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں اور خود کو بڑی آزمائش سے بچائیں۔ تو پیارے ناظرین، سلیم دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں بیٹے عمران کی مسکراہٹ پر پڑتی، ساری تھکن دور ہو جاتی۔ ہاجرہ بھی بیٹوں کے مقابلے میں بیٹے سے زیادہ محبت کرتی اور عمران پر ہی ساری توجہ دیتی، جبکہ بیٹیاں سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی، مگر ماں باپ کی ایک پیار بھری نظر کے لیے ترستی رہتی۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا اکلوتا بیٹا 23 برس کا ہو گیا۔ اب وہ وقت آ پہنچا تھا جس کا سلیم اور ہاجرہ نے برسوں سے انتظار کیا تھا۔ اپنے بیٹے کے گھر بسانے کا وقت۔ دونوں خوش تھے، دل میں دعائیں لیے بیٹھے تھے کہ بیٹے کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ گاؤں بھر میں چہل پہل تھی اور تینوں بہنیں بھی بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں، لیکن ان کے چہروں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو نامکمل تھی۔ ان بہنوں کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا، ایک ایسا احساس جسے وہ کھل کر بیان نہیں کر سکتی تھی۔ بظاہر وہ تینوں سلیم کی بیٹیاں تھیں، مگر گھر میں ان کا وہ مقام نہ تھا جو ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی محبت کے بغیر بیٹیوں کی خوشی صرف چہرے تک محدود تھی۔ سلیم اور ہاجرہ کی دنیا کا مرکز ہمیشہ ان کا بیٹا رہا، جیسے وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا اور گھر کا اصل چراغ ہو۔ سلیم کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے وہی خواب تھے جو ہر دیہاتی باپ سوچتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر خاندان کا نام روشن کرے گا اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ہاجرہ بھی اپنے اکلوتے بیٹے پر جان نچھاور کر دی، اس کی پسند اور ضروریات کو سب سے پہلے رکھتی تھی، مگر اس ساری توجہ کے بیچ بیٹیاں کہیں پیچھے رہ گئیں۔ وہ بھی محبت کی طلبگار تھیں، وہ بھی چاہتی تھیں کہ والدین ان سے شہزادیوں جیسا سلوک کریں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ گھر میں عمران کی شادی کی بات چل رہی تھی، اچانک ایک اور خبر آ گئی۔ مریم، جو کہ سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی، شہر سے اس کے لیے ایک رشتہ آیا۔ سلیم اور ہاجرہ نے زیادہ سوچے سمجھے بغیر فوراً ہاں کر دی، کیونکہ ان کے نزدیک بیٹیوں کا بوجھ جلد سے جلد اتار دینا ہی بہتر تھا۔ اگر رشتہ واقعی معقول ہوتا اور مریم بلا وجہ انکار کرتی، تب والدین کو اختیار تھا کہ وہ اسے سمجھاتے، مگر یہاں تو اسے جاننے کی زحمت بھی نہ کی گئی۔ مریم خاموش رہی، وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اس کے جذبات کی کوئی حیثیت نہیں، بس ایک ذمہ داری تھی جسے والدین نے جلد از جلد اتار پھینکا تھا۔ مریم نے دل میں ایک بے نام سا درد لیے، آنکھوں میں وہ سوال لیے جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے والدین کے فیصلے کو قبول کر لیا، جیسے کوئی لاوارث جس کی پسند ناپسند کا کوئی مول نہ ہو، اور یوں بھائی کی شادی سے پہلے ہی مریم رخصت کر دی گئی، ایک ایسے گھر جہاں شدید حالات اور تلخیاں اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر کسی نے یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ کیا چاہتی ہے یا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ مریم کی شادی کے بعد اللہ اس کا نگہبان اور اس کا شوہر بھی ایک بہت اچھا انسان نکلا۔ وہ مریم سے بے حد محبت کرتا اور اس کی ہر بات کا خیال رکھتا۔ وقت کا پہیہ گھومتا گیا اور کچھ سالوں بعد سلیم اور ہاجرہ کے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی۔ گھر خوشیوں سے گونج اٹھا، ہر طرف ہنسی خوشی کا سما تھا۔ سلیم اور ہاجرہ مطمئن تھے کہ اب ان کا اکلوتا بیٹا اپنے گھر کا ہو گیا ہے اور بڑھاپے میں انہیں سہارا مل گیا۔ بہنوں کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے، وہ بھائی کی نئی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اب ان کے والدین کو بھی سکون ملے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھائی کی شادی کے بعد مریم اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر سلیم کی باقی 2 بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی، وہ بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں، اور یوں سلیم اور ہاجرہ کے لیے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب ان کی تمام امیدیں اور سہارا صرف بیٹے اور بہو پر تھا۔ وہ یہی سوچتے تھے کہ بڑھاپے میں ان کا بیٹا ان کا ساتھ دے گا، انہیں سنبھالے گا، کیونکہ انہوں نے
अपने बेटे इमरान को नाजो नियाज से पाला पोसा था और बेहद मोहब्बत दी थी। अब वालिदैन भी अपने बेटे से इसी मोहब्बत की उम्मीद लगाने बैठे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त के साथ साथ बेटे के रवैये में सख्ती आती गई और वो पहले जैसे शफकत भरे लम्हात माजी की याद बनते चले गए। कुछ अरसा बाद माँ बाप के लिए इमरान का लहजा तल्ख हो गया और फिर वो वक्त भी आ गया जब वो इनसे बदतमीजी करने लगा जैसे वो उसके कुछ भी नहीं लगते। हाजरा के लिए ये सब किसी भयानक ख्वाब से कम न था और सलीम चुपचाप सब कुछ सहने पर मजबूर था। दिल पर पत्थर रखकर वो बेटे के बदले हुए रवैये को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। वक्त के साथ सलीम मजीद कमजोर होने लगा और बुढ़ापे ने उसे घेर लिया। अब वो चाहता था कि उसका बेटा जमींदारी संभाले, खेतों में काम करे ताकि वो खुद कुछ आराम कर सके, मगर आराम पसंद बेटा सख्त मेहनत का आदी न था। जब सलीम ने उसे मजबूर किया तो वो आग बेगोला हो गया और उल्टा वालिद से बस जुबानी करने लगा। बाप के ज्यादा जोर देने पर एक दिन हद ही हो गई जब इमरान गुस्से में आपे से बाहर हो गया और बाप पर हाथ उठा दिया। उसके बाद वो अपनी बीवी के साथ घर छोड़कर चला गया, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। अब सलीम और हाजरा बिल्कुल अकेले रह गए। बेटियां दूर ब्याही जा चुकी थी और बेटा भी उन्हें तन्हा छोड़कर चला गया। घर की वीरानगी अब दिल पर बोझ बनने लगी। कभी खाना बनता कभी नहीं। हाजरा बढ़ापे के सबब किसी काम के काबिल न रही और वो भी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। जिस बेटे को अपना सहारा समझकर सब कुछ दिया, वही आज उन्हें बेसहारा करके छोड़ चुका था। एक ऐसा घर जहाँ कभी खुशियों ने डेरे डाले थे, अब वहाँ माँ बाप अपनी जिंदगी से तंग आकर मौत की दुआएं मांग रहे थे। बढ़ापे में उन्हें नवासों की हंसी खुशी भरी आवाजें सुनने की तमन्ना थी, मगर अब वो अपने ही बच्चों की मोहब्बत से महरूम हो चुके थे। तन्हाई और बेबसी उनका मुकद्दर बन चुकी थी, लेकिन बेटे ने अब भी सुकून का सांस न लिया। अपनी लापरवाही फजूल खर्ची के पास वो कंगाल हो चुका था और जब कोई रास्ता ना बचा तो माँ बाप की जायदाद बेचना शुरू कर दी। सलीम और हाजरा बेबसी से ये सब कुछ दे रहे थे, मगर उनके पास आंसू बहाने के सिवा कोई चारा ना था। वो कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि अब उनकी आवाज की कोई अहमियत ही नहीं रही। वक्त का जुल्म यही घूमता और वो दिन भी आ गया जब सलीम के पास एक छोटा सा घर और एक आखिरी खेत बाकी रह गया जहाँ उसने अपने लिए कुछ गंदा बोई थी। वही सलीम जिसके खेतों का कोई शुमार न था, जिसके नीचे सैकड़ों मजदूर काम करते थे, जो शानो शौकत में मजदूरी बसर करता था, आज एक अशरफी के लिए तरस रहा था। वही बेटा जिसे उसने अपनी दौलत और मोहब्बत में पलकों पर बिठाया था, आज उसे सड़क पर ले आया था। कुछ अरसा उस सख्ती में गुजरने के बाद सलीम की बड़ी बेटी मरियम घर आई वालिदैन की खैरियत पूछने। मरियम जब वालिदैन के घर पहुंची तो मंजर देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। घर मुकम्मल सुनसान था, दीवारों पर पुराने नमी के निशान थे, किचन की हालत अबतर हो चुकी थी, सहन में खामोशी का राज था। माँ बाप चारवाई पर निढाल पड़े थे। ये देखकर मरियम का दिल टूट गया और वो तड़प कर आगे बढ़ी। माँ बाप के पास जाकर बैठ गई, उन्हें तसल्ली देने लगी। उसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे, मगर वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपने शोहर की तरफ देखा, आंसू जब्त करते हुए मजबूत लहजे में बोली, मैं अपने माँ बाप को इस हालत में नहीं देख सकती, मैं यहाँ रहूंगी। उसका शोहर जो एक नेक दिल और समझदार इंसान था, मुस्कुराया और नरमी से बोला, अगर तुम अपने माँ बाप के पास रहना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, हम उन्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर मरियम की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। उसने शोहर के हाथ को थाम लिया और अपने वालिदैन की तरफ देखा जो हैरत और नदामत के साथ अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे। ये वो लम्हा था जब वालिदैन की जिंदगी दोबारा बेहतरी की तरफ जाने लगी। घर में खुशियां लौट आईं क्योंकि मरियम के 2 मासूम बच्चे नाना और नानी के साथ खेलते हंसते और उनकी तन्हाई को खत्म कर देते और इनकी मासूम हंसी सलीम और हाजरा के दिलों को सुकून बख्श थी। जैसे बरसों की उदासी के बाद बाहर लौट आई हो। मरियम और उसका शोहर वालिदैन का हर तरह से ख्याल रखने लगे। खाने पीने का इंतजाम, दवाइयाँ और दीगर जरूरियात सब कुछ दामाद खुद लेकर आता। यहाँ तक कि सलीम का बकिया जमीन का हिस्सा संभाल लिया। दामाद ने गंदम काट कर खलियान भर दिए और खेतों के काम में गहरी दिलचस्पी लेने लगा। सलीम के दिल को एक नई तसल्ली मिली। शायद वक्त ने जो कुछ छीना था वो किसी न किसी सूरत में वापस मिल रहा है। लेकिन एक दिन तकदीर ने फिर आजमाइश का दरवाजा खटखटाया। एक दिन दामाद के साथ सलीम बमुश्किल के
खेतों में घूमने गया मगर बुढ़ापे और कमजोरी के बास बैलों से गिर गया। उसके जिस्म पर गहरे जख्म आए, वो दर्द से कराने लगा। दामाद ने फौरन आगे बढ़कर सलीम को उठाया और हकीम के पास ले गया मगर जख्म इतने शादीद थे, सलीम बमुश्किल चलने के काबिल था। जब मरियम ने अपने बाप को यूं बेबस देखा तो उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। सलीम की आंखों में नमी तैरने लगी। वो अपनी बेटी को अपने लिए तड़पते हुए देखकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर कांपते हाथों से उसे सीने से लगाकर बोला, बेटी मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया, तुम्हें बेटी जैसा प्यार न दिया, मगर तुमने आज बेटे से बढ़कर मेरा हक अदा कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती, रहमत होती हैं। मरियम ने बहुत दर्द भरे लहजे में कहा, नहीं अब्बा, आप ऐसी बात न करें, हमारे लिए तो आप जन्नत के दरवाजे जैसे हैं। सलीम का घर जो कभी बेटे की जुदाई से वीरान पड़ गया था, अब एक बार फिर खुशियों और मोहब्बत की गर्मी से भर चुका था। मरियम की देखा देखी उसकी दूसरी बहनें भी वालिदैन की खबर लेने आने लगी। नवासे नवासियां नाना नानी के गिर्द खेलते, उनके लिए हंसी खुशी का सामान भरते और सारा दिन उसके साथ खेलते। सलीम कभी इन बच्चों को देखता, कभी अपनी बेटियों, और दिल ही दिल में ये सोचता कि शायद अल्लाह ने उससे बेटे की मोहब्बत छीन कर बेटियों की मोहब्बत से नवाजा है। और वो जो हमेशा बेटे के सहारे आस लगाए बैठे थे कि आज उसे एहसास हो चुका था कि हकीकी सहारा वो बेटियां हैं जिन्हें वो कभी कमजोर समझता था। बहुत अरसे बाद सलीम दुनिया से रुखसत हो गया। उसके पीछे हाजरा भी न ठहर सकी, मगर इन दोनों की आखिरी मंजिल वही बेटियां बनी जिन्हें कभी कमतर समझा गया। वो वालिदैन जो बेटे के सहारे की उम्मीद रखते थे, उन्हें बेटियों के कंधों पर सर रखकर इस दुनिया से चले गए। प्यारे नाज़रीन, इस कहानी में हमारे लिए कीमती सबक पोशीदा है जो असल में इसका बुनियादी मकसद है। माँ बाप होने के नाते कभी भी अपने बच्चों में फ़र्क ना करें, क्योंकि वालिदैन की मामूली से नाइंसाफ़ी भी बच्चों के दिलों में बड़ी दरार डाल सकती है। बेटा हो या बेटी, दोनों को अल्लाह ताला ने बराबर हकूक दिए हैं और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। दूसरी अहम बात यह है कि बच्चों को मोहब्बत ज़रूर दें, लेकिन वक्त के साथ साथ प्यार का अंदाज़ा बदलना भी ज़रूरी है, वरना लाड में बिगाड़े गए बच्चे जैसे इमरान न सिर्फ खुद नाकाम होते हैं, अपने वालिदैन के भी किसी काम नहीं आते। मोहब्बत के साथ साथ बेहतरीन तरबियत भी ज़रूरी है, क्योंकि एक बेतरबियत इंसान जानवर से भी बदतर बन सकता है। बेटे होने के नाते वालिदैन की इज्जत और एहतराम हर हाल में लाजिम है। अगर वालिदैन किसी बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करें या ना करें, ये बेटे पर अल्लाह ने लाजिम फरमाया है कि बच्चे वालिदैन के ताबे हों। वालिदैन की दुआओं में अपनी कामयाबी तलाश करो, उसके साए को हमेशा अपने खुशकिस्मती समझो, ना कि एक मामूली चीज़। 20 साल के बाद खुद को बच्चा ना समझो, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना सीखो। वालिदैन का सहारा हमेशा नहीं रहता, कामयाबी के लिए खुद मेहनत करना ज़रूरी है। बेटियां भी याद रखें कि वालिदैन या शोहर की बेरुखी और जुल्म पर सब्र करने से अल्लाह वो बुलंद दर्जात अता करता है जो बाज़ लोगों को सख्त मेहनत से भी नहीं मिलते। अफसोस की बात है कि बाज़ लोग बेटों को फोकियत देते हैं और बेटियों को नज़रअंदाज करते हैं, हालांकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस मुबारका में बेटी को रहमत कहा गया है और इसका मतलब ये है कि बेटी वालिदैन के लिए दुनिया में भी रहमत का जरिया बनती है, और अगर यहाँ नहीं आखिरत में ज़रूर बनेगी, मगर इसकी अच्छी तरबियत शर्त है। प्यारे नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सबक आमूज़ कहानियाँ के लिए हमारे चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि उनकी भी इस्लाह हो जाए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।